Good morning, students. Today we are going to discuss about the fish hatchery management for maintaining the genetic quality that falls under your course, fish hatchery management. So at first, I would like to interact with you that what do you understand that how we can manage our fish hatcheries while maintaining the genetic quality or the brood or the individual or the next progeny. Can anyone give your input? Whatever you understand, you just discuss with us so that it will be a little bit easier to understand. So I think that most of you are knowing that what is a fish hatchery and what should be the management strategies that is essential to maintain the pure breed. Okay. Now you see, from 1957 itself, when the brew revolution comes into the existence, or even in 1932, when Brazil was the first country get successful artificial insemination in case of fishes. So we came to know that these artificial propagation of fish species in hatcheries are conducted from that period, and nowadays it is a very common and you can look within your around. Now recent days, what happens? Now the term comes conservation hatcheries. So what does conservation hatcheries means? A conservation hatcheries aims not only to produce fish, but along with they supplement the wild population. Why so? To preserve the genetic diversity, which can help to maintain the effective population size of a particular species, and also helps to maintain the integrity of threatened or endangered species which are locally available or which are endemic. So what are the important considerations that are the important considerations which are, yes please. Okay, so important consideration which is made for these conservation hatcheries is to maximize genetic diversity and to maintain the effective population size. Okay, so that it's the inbreeding depression should not occur in case of hatchery or on the farm, at the farm level or in the wild population. And it should, and the due to this genetic flow, it should be minimize the adaptation to captivity, as we are knowing that IMCs are where they breed, they are breeding in flow river system. Clear? इसमें कोई प्रॉब्लम है? Okay. No, sir. Good. Now, what is the objective? So objective is to maintain the genetic diversity, to maintain the effective population size, and to minimize inbreeding. And what should be the genetic management options for developing these fish conservation hatcheries? These are the objectives behind the management. Clear? अब थोड़ा हम लोग हिंदी में बात करते हैं. I hope that all of you are knowing from your previous studies that why genetics, to understand the genetics is a necessary or essential component. So see how we can maintain these genetic management strategies, or we can follow up these strategies by different steps. Like if we want to maintain effective population size, we have to select progeny with a minimum relatedness. It should be a single pair cross or the factorial mating or the equalized family size.
If we want to maintain the genetic diversity, so we have to fix our goal. Fix our goal regarding to maintain the effective population size, to maintain the genetic diversity, to minimize the adaptation to captivity for those fishes which are not found in generally found in the captivity, but we keep in the pond or the stagnant water bodies. Then it should be the minimized inbreeding. Okay, so there are different subcomponent of this, how we can minimize inbreeding, like pedigree based crosses or maximum avoidance of inbreeding, or how we can study the molecular relatedness estimates between two species. So these are subcomponent of these strategies. Now see, अब हम लोग आते हैं कि जेनेटिक टेक्नोलॉजीज हाउ दे कैन बी बेस्ट यूटिलाइज्ड इन केस ऑफ एक्वाकल्चर. So in case of aquaculture, they can be utilized for variety of reasons. ठीक है, तो जेनेटिक इंप्रूवमेंट ये कैसे हमारे लिए लाभदायक है, हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर द पर्सन हु इज रनिंग अ हैचरी. क्लियर? जैसे सपोज हमको कोई सिलेक्शन करना है, ठीक है ना, सपोज कि किसी की मछली बहुत ज्यादा, हम लोग जनरली कंप्लेंट सुनते हैं कि वहां से हम एक सीड लाए और वो सीड जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रही है. क्लियर? हेलो, जो सीड लाए वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर जो स्टॉक लाए उसमें डिजीज ज्यादा आ रहा है. ठीक है, या फिर हमारा जो कोई भी हम सीड ला रहे हैं उसको हम फीड तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, सप्लीमेंट्री फीड डाल रहे हैं, हर एक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रिक्वायर्ड ग्रोथ है वो हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे. तो हम लोग के लिए ये जानना जरूरी है कि हम सबसे पहले जो सीड होता है वो कहाँ से लाते हैं. ठीक है, और ये सीड किस प्रकार का है. तो दे मस्ट बी ऑथेंटिक, दे मस्ट बी सर्टिफाइड हैचरी ऑनर्स, so that they can supply a good quality of seed. अब गुड क्वालिटी ऑफ सीड प्रोडक्शन के लिए जो है वो कौन कौन से गोल होते हैं जनरली हम लोग जो जेनेटिक इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स जो हम लोग रन करते हैं, ठीक है, ओके, जो भी जेनेटिक प्रोग्राम्स हम लोग रन करते हैं तो हमारा गोल क्या होता है कि मैक्सिमाइज प्रोडक्शन होता है ना. Yes, sir. To maximize production, isn't it? Clear? Yes, sir. अभी देखो, अब बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है. ठीक है, नाउ यू सी, नाउ दीज जेनेटिक इंप्रूवमेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो दो तरह के, शॉर्ट टर्म्स या लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए किया जाता है. शॉर्ट टर्म गेन क्या है और लॉन्ग टर्म गेन क्या है. द शॉर्ट टर्म गेन्स आर यूजुअली इमीडिएट विद इन 2 generations एंड जनरली नॉट क्यूमुलेटिव. What does it mean? इसका मतलब क्या हुआ कि जो शॉर्ट टर्म गेन होते हैं वो बहुत इमीडिएटली इफेक्टेड होते हैं. जैसे आप लोगों ने सुना होगा मोनोसेक्स टिलापिया, सबने सुना है ना, मोनोसेक्स टिलापिया. Yes, फिर देन हम लोग देखते हैं कि विद इन 2 generation, क्या ये मोनोसेक्स टिलापिया क्या फर्दर हम जनरेशन बाय जनरेशन इसको ले सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए कल्चर कर सकते हैं? नो, बिकॉज देयर इज अ चांसेस ऑफ सेक्स रिवर्सल एंड they are not generally not cumulative. ठीक है ना. तो एक होता है शॉर्ट टर्म गेन करने के लिए, जैसे तिलापिया बहुत ज्यादा जल्दी ब्रीड करता है, हमको ज्यादा आउटपुट प्रोडक्शन लेना है और वो बहुत जल्दी ग्रो करता है. मैच्योरेशन यानी वो पार्चुराइजेशन जिसको बोलते हैं, पार्चुराइजेशन मतलब होता है कि जो जल्दी पुबर्टी को रीच करते हैं. ठीक है, और जो मैच्योरिटी को ज्यादा जल्दी रीच करते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि ये कितना जल्दी रीच होता है तो उससे पहले हमको ग्रोथ लेना है और हार्वेस्ट करना है, सो दैट सेक्स रिवर्सल, देयर शुड बी अ मिनिमल चांस ऑफ सेक्स रिवर्सल इनटू मेल टू फीमेल. वंस इट विल बी फीमेल, फिर क्या होगा, हम इसके ब्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. क्लियर? फिर शॉर्ट टर्म गेन क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि गप्पी के केस में हम लोग मेल कल्चर करते हैं, अदरवाइज ये क्या होता है, प्रोलिफरेट करने लगता है वाइल्ड पॉपुलेशन में बहुत. ठीक है, पोइसिलिया रेटिकुलाटा गप्पी. ठीक है, तो ये सब कुछ स्पीसीज हैं जिनके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म इमीडिएट गेन करने के लिए जो शॉर्ट टर्म गेन करते हैं वो हो गया. एक होता है लॉन्ग टर्म गेन, जैसे आप लोगों ने जयंती रोहू का नाम सुना है, अभी तक सुना होगा ना, सुना भी है या नहीं सुना है?
बी सुने फ्रेंडली। तो सुने जयंती सर। रोहू का जो है वो जयंती रोहू क्या है, दिस इज अ सेलेक्टिव ब्रेड, ठीक है। ये सेलेक्टिव ब्रेड स्पीसीज है जो अदर रोहू के अगेंस्ट ये लगभग 20% मोर ग्रोथ शो करता है, ठीक है ना। उनका जो क्लेम है, जो दावा है सीफा का, व्हाट दे क्लेम दैट द जयंती रोहू इज growing much more faster than that of our indigenous Labio rohita. So Jayanti rohu is Labio rohita only, ठीक है, but the name is Jayanti because it is bred, it was released on the occasion of, ये कब किया गया था, ऑन द ओकेजन ऑफ, जब सीफा का जो जयंती थी, जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था, उन्होंने इस दिन इसको रिलीज किया, इसलिए इसको हम लोग जयंती रोहू नाम से बोलते हैं। क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। और जयंती रोहू का लगभग अभी तक 17वां जेनरेशन ले लिया गया। तो अब होता क्या है, ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग हम लोग सुनते हैं, या शॉर्ट टर्म गेन या लॉन्ग टर्म गेन जो होता है वो किस किस तरह का होता है और कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू सी, जब हम लोग लॉन्ग टर्म जेनेटिक इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि अभी तक फीस में कोई बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि फीस में ऐसा क्या दवाई डाल दें या क्या डाल दें कि तुरंत ग्रोथ फास्टर हो जाए, है कि नहीं। श्रीकांत इज हियर, वो बराबर मुझसे पूछता रहता है। सो जेनेटिक इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज इज वन ऑफ द टूल एंड टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन गेन रिलेटिव लार्जर साइज देन दैट ऑफ ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल हैचरीज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब सुनो, अब और भी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हम लोग डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होता है वो जनरली नेचुरल सिलेक्शन से हो सकता है या तो आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है भैया, कोई बोल सकता है हाउ दिस नेचुरल सिलेक्शन टेक्स प्लेस। नेचुरल सिलेक्शन इन केस ऑफ, यदि कोई इंटर स्पीसीज, ठीक है ना, जैसे रोहिता है और एक रोहू का हम लोग ब्रीड करवा रहे हैं, तो ये नेचुरली सेलेक्ट करता है, ठीक है। पर्टिकुलरली यदि हम लोग अपनी बात करें, एज अ ह्यूमन हम अपनी बात करें, प्यूबर्टी की बात करें, वी अट्रैक्ट टू समवन स्पेसिफिक पर्सन, अट्रैक्ट होते हैं ना हम लोग स्पेसिफिक पर्सन के साथ। ऐसा तो नहीं कि हमें सब कोई पसंद आता है। इफ आई विल आस्क यू दैट कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है, देन यू विल टेल सम नेम। किसी को कुछ और पसंद हो सकता है, किसी को कुछ और पसंद हो सकता है, या कोई ऐसा पसंद हो सकता है जिसको हर कोई पसंद कर सकता है, ठीक है ना। एक नाम ऐसा आ सकता है जो आप देखोगे कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि नेचुरली सेलेक्ट होता है, नेचुरली सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो मछली जब नेचुरल सिलेक्शन होता है, ये क्या करती है, नेचुरल सेलेक्ट करती है। इवन इन केस ऑफ एनी एनिमल्स, fishes they naturally select their pairs so that they can breed a healthy animal, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक जो स्पीसीज है उसको हम लाते हैं, हम इंजेक्ट करते हैं और उसको कन्फाइंड वाटर बॉडीज में रखते हैं। नहीं, या तो कन्फाइंड वाटर बॉडीज में रखेंगे, दे आर कंपेल्ड टू spawn within a confined boundaries। एक तो ये हो गया, या सेकेंड क्या हो सकता है कि हम लोग सेलेक्ट किए एक हेल्दी ब्रूड, एक फीमेल लिए और एक मेल लिए, और फिर हमने स्ट्रिपिंग की और मेल और फीमेल एग को हम लोग मिक्स किए और इस तरीके से हम लोग ने सेलेक्टिव ब्रीड किया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। सो व्हाट इट इज रिटेन ओवर हियर, नेचुरल सिलेक्शन एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग कैन बोथ काउज चेंजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाउ? The difference between the two is that natural selection happens naturally, but in case of selective breeding only occurs when humans intervene, and hence sometimes called artificial selection. अब suppose for a particular purpose, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारे पास काला रोहू हो, सुना है ना तुम लोग, रोहू है, but we want to a black रोहू instead, then how we can get black rohu from selective breeding? कैसे हम लोग मिल सकता है, क्या कोई इस पर हमको इनपुट दे सकते हो, थोड़ा हम लोग
इंटरेस्टिंग टॉक कर रहे हैं। वी हैव टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर ट्रेट। अब आप लोग जेनेटिक्स पढ़ लियो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं उसमें सेलेक्टिव ट्रेट यूज करते हैं। पर्टिकुलर ट्रेट, कैरेक्टर, ट्रेट मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। ओके, पर्टिकुलर ट्रेट हम लोग यूज करते हैं। जैसे सपोज हमको काला रोहू लेना है और हमको उसे ब्रीड कैसे, उसका हम ब्रीड कैसे लेंगे, जैसे आप लोग सुनते होंगे मास सिलेक्शन हम लोग बोलते हैं। मास सिलेक्शन में क्या करते हैं, एक आप पर्टिकुलर रोहू को जब अलग अलग रिवराइन सिस्टम या अलग अलग इकोसिस्टम में देखोगे, अकॉर्डिंग टू दैट दे एडप्ट, दे एक्लिमेटाइज ड्यू टू जेनेटिक मैनिपुलेशन और क्रोमोजोमल मैनिपुलेशन नेचुरली, ठीक है ना। जैसे इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं, अफ्रीकन लोग काले होते हैं, और हमारे जो सब ट्रॉपिकल कंट्रीज वाले वो क्या होते हैं, गेहुआ रंग के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन किए, हमारे जीनोटाइप में सर्टेन बदलाव आया, जीन्स में सर्टेन चेंजेज आए, जो समय के साथ क्या हुआ, चेंज हुआ, और जो हमारे फेनोटाइपिक बिहेवियर में वो दिखना शुरू हुआ। क्लियर। तो सपोज हम लोग को सबसे पहले लेते हैं, सपोज कि ग्रोथ हमको लेना है। ग्रोथ रेट इज द characteristic most often improved in selective breeding programs and increases up to 20% per generation that has been reported till date। अभी तक देखा गया कि जो ग्रोथ रेट, अभी हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कि क्या स्पीसीज डालें कि बहुत जल्दी ग्रोथ होने लगे, तो ये है 20% जनरेशन रिपोर्टेड है। अभी सपोज जयंती रोहू हो रही है, जयंती रोहू ला करके किए, अब फिर क्या करते हैं, उसी का ब्रूड तैयार करके हम लोग यदि ब्रीड करवाएंगे तो क्या हमारा वो फर्दर 20% ग्रोथ ज्यादा नहीं दे सकता है, नहीं, क्योंकि जैसे जैसे इन ब्रीडिंग होती चली जाएगी वो डिप्रेशन होता चला जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं, डिस्कस करेंगे। देन अदर ट्रेट्स हैव बीन शोन हैव एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस एंड देयरफॉर एमेनेबल टू इंप्रूवमेंट। ट्रेट्स सच एज डिजीज एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंस, टाइमिंग ऑफ मैच्योरिटी एंड फ्लैश क्वालिटी आर नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली इंक्लूडेड इन सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एक हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ है। जैसे सपोज किसी के यहाँ डिजीज आउटब्रेक हो गया तो हम लोग डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी निकालेंगे। भैया डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी कैसे निकालेंगे, तो मास सिलेक्शन से। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फिशेस को हम लोग चैलेंज करेंगे पर्टिकुलर माइक्रोब से, उसमें बहुत सारी मछलियां मर सकती हैं, लेकिन कोई तो जीवित होगा, जो जीवित होगा उसको फर्दर रीचेक करेंगे, ठीक है। जब देखेंगे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो रेजिस्टेंट है, उसमें अब जो है वो पर्टिकुलर माइक्रोब के अगेंस्ट वो डिजीज रेजिस्टेंट हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेलेक्ट करते हैं, और उस सिलेक्शन को लेकर के मेल और फीमेल पॉपुलेशन को मैच करवाते हैं। ऐसे मेल को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे फीमेल को सेलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से हम लोग उसको, उसके जो प्रोजेनी है उसको हम लोग रखते हैं, उसमें से फिर हम लोग फर्दर फिर सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब इसमें मेन स्टेप जो है वो क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे फर्स्ट you have to decide which characteristics that are important enough to select, that you have to select which characteristics you want in the next generation. Now second one is choose parents that show these characteristics, ठीक है। जैसे कोई रोहू बहुत जल्दी बढ़ जाता है, सूट आउट फ्राई बोलते हैं हम लोग, हमसे भी सुने होंगे, सूट आउट फ्राई बोलते हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी कोई ग्रो कर गया। तो we have to select these such kind of parents, then choose the best offspring from these parents to produce the next generation। अब इसमें से 10 से 20%, ठीक है, इसके जो पॉपुलेशन होगा इसमें से आप बेस्ट, या 5 से 10% यानी 10% पॉपुलेशन आप सेलेक्ट करो, जिसको फर्दर हम नेक्स्ट जनरेशन में इसको हम क्रॉस करवाएं, ठीक है, मतलब सेलेक्ट करके ब्रीड करवाएं, नॉट क्रॉस। Then repeat this process continuously। अब इस प्रोसेस को हम लोग को कंटिन्यूअस करना है। जैसे सपोज अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाइल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, ये दो डिफरेंट वाइल्ड पॉपुलेशन है। सीफा ने जो किया वो क्या किया, वो 5 रिवराइन सिस्टम के रोहू कलेक्ट किए। तो यहाँ पे सपोज 2 पॉपुलेशन हम लोगों ने लिया, और यहाँ पर इसका मेल और इसका फीमेल से जो प्रोजेनी हुआ, ठीक है, और इसका सपोज ये वाइल्ड पॉपुलेशन है, ये वाइल्ड पॉपुलेशन है, इससे मेल सेलेक्ट किए
इससे फीमेल सेलेक्ट किए, इससे एक जनरेशन जो लेंगे इसका अब मेल और फीमेल हो गया, ठीक है। ये क्या दे दिया हमको, F1 जनरेशन। सेकेंड, ये दूसरा रिवर्डाइन सिस्टम है, ये दूसरा रिवर्डाइन सिस्टम है जी। और ऐसे फिश को सेलेक्ट किए जो बहुत हाईली ब्रूड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि नदी की मछलियां जो है बहुत जल्दी बढ़ती हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर गेटिंग एडिक्वेट फूड एंड दे आर गेटिंग एडिक्वेट स्पेस। और फर्दर क्या होता है कि हम लोग इसमें से सेलेक्ट किए, मेल फीमेल सेलेक्ट किए, इस फीमेल से जो ये F1 जनरेशन हुआ, ये F1 जनरेशन हम लोग रखे। अब इसका एक फीमेल और इसका एक मेल को हम जब सेग्रीगेट किए तो ये हमको क्या दे दिया, F2 जनरेशन दे दिया ना। अब वहां पे सपोज जहां पे हम लोग क्या बोले थे कि 5 डिवाइड सिस्टम से किए, जैसे सपोज यहाँ पे हो सकता है गंगा, यहाँ हो सकता है ब्रह्मपुत्र, यहाँ हो सकता है गंगा, यहाँ हो सकता है महानदी। थर्ड जो सेट होगा वो हो सकता है किसका, महानदी का, गोदावरी का। तो इस तरीके से रैंडम हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, फर्दर F3 जनरेशन, 4 जनरेशन, और इस तरीके से जो सीफा वो 17 से अभी हम लोग 20% ग्रोथ, वो दे आर क्लेमिंग दैट दे आर अचीविंग 20% मोर ग्रोथ देन दैट ऑफ आवर endemic or individual Labio rohita that is cultured by the conventional hatcheries. Okay, तो ये जो अच्छा, ये ठीक लग रहा है, सुन रहे हो या फिर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ? नहीं सर, बहुत ठीक है अच्छा है। Now see, now these genetic improvement, हाँ yes please. सर F1 से F2, F2 से F3 जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हम लोग ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो जैसे F1 से F2 में गया तो उसमें क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर तो सर ज्यादा डेवलप होगा। यस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमेशा डोमिनेंट जीन, जैसे इसलिए हमने बोला ना कि हम लोग को सेलेक्ट करना है वो कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, तो जैसे मान लीजिए सर, अगर हमको बेस्ट ग्रोथ रेट लेना हो, अगर मान लीजिए रोहू का अगर हम लेते हैं तो उसका बहुत सारे स्पेसीज को हम कलेक्ट करते हैं और उसका हम ब्रीडिंग कराते हैं F1 में जो आता है। और दूसरा चीज हमको लेना है कि मतलब कि क्वालिटी ऑफ फ्लेश जो है, या फिर जो डिजीज रेसिस्ट करे, तो उसका हम दो स्पेसीज को अलग से लेकर के, तो F1 जो आ गया ये दोनों से, तो फिर F1 को हम दोनों मिक्स इंटरब्रीडिंग कराते हैं, तो एक आपको F2 में जो हमेशा जाता अलग है टैंक यूज करना पड़ेगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बिकॉज आइदर यू हैव टू टैग दोज स्पीसीज, टैग कर लेना होता है, जैसे निशान बनाते हैं ना, तो आप लोग को टैगिंग कर लेना होता है, सो दैट यू कैन कम टू नो दैट व्हिच जनरेशन इज दिस वन और फ्रॉम व्हिच, मतलब रिवर्डाइन सिस्टम, और क्या कलेक्शन है, कहां से कलेक्शन किए। ठीक है, तो इस तरह से तो सर हम बेस्ट स्पेसीज को सर फाइंड कर ही सकते हैं या फिर डेवलप करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। मेरा पर्पस यही था कि आपको सेलेक्टिव ब्रीडिंग बताएं हम, ठीक है। यदि आप लोग समझ गए हो तो आई एम वेरी मच फाइन अबाउट दिस, ठीक है, क्लियर है। उसी का है कि ये कैसे होता है कि जेनेटिक इंप्रूवमेंट टेक्स प्लेस इन वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन, जिसको सूट आउट फ्राई बोलते हैं। तो ये जो इंप्रूवमेंट होता है ना, तो वो आपके पर्टिकुलर, आप देखेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक जाता है, जैसे हम लोग आप जेनेटिक में देखते होंगे जो रेशियो जाता है F1 जनरेशन में, यदि आप लोग को याद होगा तो कितना जाता है, 3:1 का जाता है। फिर जो नेक्स्ट जाता है कितना जाता है, और 3:1 में भी क्या होता है, 1:2:1 होता है ना, यानी कि एक मेल का जाएगा, एक फीमेल का जाएगा, और 2 जो जाएगा वो क्रॉस्ड रहेगा, जिसमें पेरेंटल बोथ प्रॉपर्टीज होगा। इसी तरीके से जब F2 जनरेशन में हम लोग जाते हैं तो हम लोग का क्या रेशियो रहता है, 9:3:3:1 वही रहता है। राइट, एम आई राइट? ओके ओके, चलो हमको भी कुछ याद आ रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, हम जेनेटिक्स के नहीं हैं तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग सर, ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग सर फिश में ज्यादा नहीं हो पाया है, और जैसे और देखे जैसे कैटल में ज्यादा हुआ है, तो इसके पीछे क्या फैक्टर हो सकता है? देखो, इसके पीछे फैक्टर ये होता है कि क्योंकि जो भी हम कैटल हम लोग लेते हैं तो वो बहुत कम स्पेस लेता है, ठीक है। जब आप मछली को लेते हो तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज, या तो अलग पॉन्ड या तो अलग टैंक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है ना, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग लेने का, वो बढ़ता चला जाता है। स्पेस की चाहिए आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, या तो फिर आपको टैगिंग चाहिए। यदि टैगिंग करोगे तो भी लेबर कॉस्ट बढ़ेगा,
क्योंकि आपको हॉलिंग करना पड़ेगा, फिर एक एक करके मछलियां देखनी पड़ेंगी फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। तो इस कारण से जो है वो मछलियों में नहीं किया गया है। हमको पता नहीं हम आप लोगों के साथ कितना जस्टिफाई कर रहे हैं, इवन दो आई एम अ पैथोलॉजिस्ट। यहाँ पे वही किया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे यहाँ पे डोमिनेंट जीन है जो ए और ए वेराइटी है, आप लोगों ने ब्रीड किया, और यहाँ पे क्या होता है इस तरीके से करते हैं, ये आप लोग बहुत सारा कैलकुलेशन किए हुए हो, तो हमको बताने की उसमें जरूरत नहीं है। देन यही है, देखो यहाँ पे प्रोडक्शन पॉइंट बढ़ता चला जा रहा है, प्रोडक्शन पॉइंट 1 से लेके प्रोडक्शन पॉइंट 25 तक, और फैमिली हमारा 25। और यही कारण है कि जो हमारा जो ब्रूड फिश है जब हम लेते हैं तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वहां पे बढ़ जाता है। तो रिसर्च स्टेशन के लिए फाइन है कि वहां पे 40 या 45 पॉइंट है, स्पेशली सीफा में, तो उन लोगों के लिए आसान है कि वो फर्दर जनरेशन तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक कन्वेंशनल फार्मर के लिए इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। अब एग्जांपल्स क्या क्या है, तो एग्जांपल्स हैं जैसे एटलांटिक कॉड है, एटलांटिक साल्मन, जिसपे काम किया गया है, ठीक है। तो आप लोग लिख लो, आप लोग मत समझो कि सिर्फ रोहू तक सीमित है, ये रोहू इंडिया में हुआ है, सीफा में किया गया है, लेकिन ये अटलांटिक कॉड किया गया है, अटलांटिक सॉल्मन पे काम किया गया है, कॉमन कार्प पे की गई है ये, ठीक है। देन गिल्ट हेड सी ब्रीम, हाइब्रिड स्ट्रिप्ड बास, आप लोग अमूर कार्प का नाम सुनते हो, इट इज अ वेराइटी ऑफ कॉमन कार्प ओनली, इवन दो यू केम टू नो दैट कॉमन कार्प हैविंग 3 lineage, ठीक है ना, 3 वेराइटीज होते हैं, एक कॉमन कार्प वार कम्युनिस, कॉमन कार्प वार नूडुस एंड कॉमन कार्प वार स्पेक्युलरिस, वार मतलब वेरिएंट, ठीक है। तो ये अलग है, कॉमन कार्प है, मिरर कार्प है, जो लेदर कार्प है, इसी का अलग अलग। देन हम लोग आते हैं गिल्ट हेड सी ब्रीम, हाइब्रिड स्ट्राइप्ड बास, लेक मालावी टिलापिया, ये हम आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि इन सब मछलियों पे किया जा चुका है, नाइल टिलापिया, निलोटिकस टिलापिया नाइलोटिकस, रेड सी ब्रीम एंड रोहू भी है, तो रोहू हमारे यहाँ हुआ। डिजीज रेजिस्टेंस पे क्या क्या काम हुआ है, तो डिजीज रेजिस्टेंस पे आपका सेल फिश हैचरी मैनेजमेंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे पीनियस वन्नामई या लिटोपिनियस वन्नामई जो अभी बोलते हैं व्हाइट लेग श्रिम्प, इनमें देखा गया है, और ये जनरली इसको हम लोग बोलते हैं F1 जनरेशन, इसको स्पेसिफिक पैथोजन फ्री स्टॉक भी बोलते हैं, SPF। वही यहाँ पे है कि अनदर पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक सिलेक्शन टेक्निक्स इज इन द एरिया दैट इनहांस फीड यूटिलाइजेशन, यानी कौन सी ऐसी मछली है जो कम खाकर ज्यादा फ्लैश क्वांटिटी दे दे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे ब्रूड को, और फर्दर उनका मेट करवा करके हम लोग इस फिशरीज डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं। ये था लॉन्ग टर्म गोल, क्योंकि ये तुरंत नहीं अचीव कर सकते हैं, क्योंकि क्यों नहीं तुरंत अचीव कर सकते हैं, आप जानते हैं कि मछलियों का एक पर्टिकुलर सीजन होता है ब्रीड करने का, सबसे पहला। दूसरा कि एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में कम से कम आपको 1 साल लगेगा, लेकिन इन केस ऑफ कैटल क्या होता है, हम कंटिन्यूअस ब्रीड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कुछ कारण हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से, अब देखो रनिंग ऑफ टाइम, हम लोग ये लॉन्ग टर्म गोल हो जाते हैं। देन आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं जनरली ट्रांसजेनेसिस। ट्रांसजेनेसिस, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, ये जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि हम लोग जो जीन्स हैं उसको मैनिपुलेट करते हैं। सपोज कोई जीन जो होगा वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए या पर्टिकुलर प्रोटीन रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है कि नहीं है, ये सबको क्लियर आ रहा है। मैं बहुत लेमैन के वर्ड में बोल रहा हूँ, अभी तो जीन समझ में आ गया ना, कि जीन बोलते हैं कि हमारे फादर को डायबिटीज था तो हमारे चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, या ओंकोजीन यानी कैंसर, यदि प्रोजेनी पेडिग्री एनालिसिस करते हैं कि यदि कैंसर किसी को है तो हमारे जनरेशन में बढ़ जाती है उसकी आशंका। तो इसी तरीके से जो जीन होता है वो फ्लो होता है। तो ये जो अभी हम लोग बोले थे कि 5 से 10% जो हम लोग वहां सेलेक्ट किए ना, कि 5 से 10% पॉपुलेशन जिसमें ग्रोथ फास्टर होता है, तो ऐसे स्पीसीज को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो जीन होता है उस तरह के उनके जीन को जो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज करे, जिनका FCR ज्यादा हो, ऐसे जीन को हम सेलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन टाइम में ही। अब क्या इसको लाइव फिश में कर सकते हैं? नहीं, इसको क्या करेंगे, जब आपका एग बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन,
ठीक है? हेलो, यस सर। जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन हम करवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उस जीन को मैनिपुलेट कर देते हैं आइदर स्पर्म में। अब उसका देखो, उसका अलग अलग मेथड, हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। देयर आर डिफरेंट मेथड्स थ्रू व्हिच दीज जीन्स कैन बी इंसर्टेड विद इन दैट एग। दीज आर, कौन कौन से हैं? तो ये हैं माइक्रो इंजेक्शन, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोपोरेशन, और अदर मेथड हो सकते हैं, या हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट। इसमें क्या होता है, जो एग्स होते हैं ना, एग्स जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंजेक्ट कर देते हैं वो पर्टिकुलर क्रोमोजोम या जीन फ्रेगमेंट या वेक्टर जीन जिसको बोलो, ठीक है, जो दैट विच आर रिस्पॉन्सिबल टू रिलीज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। बोर्डिंग तो नहीं हो रहा है ना? बोर्डिंग हो रहा है तो बता देना, काहे कि बहुत मेहनत से हम कोशिश कर रहे हैं बताने का। उसमें हम लोग माइक्रो इंजेक्शन डाल के हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर जीन उसमें चला जाएगा और वो जीन इंसर्ट हो जाएगा, और जब इंसर्ट हो गया तब जब ये स्पीसीज आएगी तो उसमें वो क्वालिटी डेवलप होना शुरू करता है। तो ये, और जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑब्वियसली ये फर्स्ट सक्सेस कब हुआ था, तो 1984 टू 1985। इसको ट्रांसजेनिक फीसेस भी बोलते हैं। आप लोग को ऐसे भी आता है कि ट्रांसजेनिक फीसेस आर वेदर इट इज ए बून और कर्स। So in short, we say transgenesis is the introduction of exogenous genetic material into a host genome, resulting in its stable maintenance, transmission and expression. ठीक है? फर्स्ट सक्सेस किसमें हुआ था? फर्स्ट सक्सेस हुआ था 1984 में रेनबो ट्राउट और 1985 गोल्ड फिशेस में। ठीक है? तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक फिश आ गई थी हमारी, और इसके बाद जो ट्रांसजेनिक इंडिविजुअल्स आए, लगभग 35 ऐसे स्पीसीज हैं जो प्रोड्यूस हो चुके हैं जेनेटिक इंजीनियर्ड। क्या आप लोगों में से कोई एक बता सकता है जो जेनेटिक इंजीनियर्ड फिश हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, इन स्टोर में अवेलेबल है? इंडिया नहीं तो फॉरेन कंट्रीज में ही। थोड़ा सा हम लोग जीके का सवाल कोई पूछ रहे हैं, मे भी हो सकता है आपके जेआरएफ का भी सवाल हो ये। एनीवन कैन से? गिफ्ट टिलापिया। गिफ्ट टिलापिया, ओके, वेरी गुड। अदर वन? और कोई? गिफ्ट टिलापिया है, बट दिस स्पीसीज इज नॉट परमिसिबल एट ऑल। समझ में आया? एफडीए जो है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो इसको परमिट नहीं किया। हम लोग देखते हैं आगे प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक फिश क्या करते हैं। तो फिश आर वेरी टॉलरेंट ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन, उसको साल्मोन है अभी, ठीक है, जो एफडीए उसको ये किए। फिश आर वेरी टॉलरेंट ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशंस, सो दिस इज द boon of being a fisheries professional. So you must know, especially in the early stages of development, there are various methods of foreign gene insertion, micro injection, electroporation and sperm. ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। This involves introduction of a DNA construct that contains gene for desired trait into a pronuclei of fertilized eggs. Then it is followed by either in vitro or in vivo incubation of these injected embryos in different hatching incubation centers. Okay, फिर जब ये मैचुरेशन होगा, ये ट्रांसजेनिक आपका बन गया। यही है। अब एग्जाम्पल क्या है? जेनेटिकली इंजीनियर्ड ईस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट फीड इंग्रेडिएंट्स, फिश ग्रोथ हार्मोन और कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स। हम लोग स्पेसिफिक ग्लो फिश है उसका एग्जाम्पल, जो कैरेटिनॉइड पिगमेंट्स है। ग्लो फिश जेब्रा का एक वेराइटी है जिसको यूज किया गया है वाटर क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए। आपको जानना चाहिए ये चीज कि कैसे हम लोग फिश को एक्सप्लोर कर सकते हैं। टू नो वेदर द वाटर क्वालिटी इज प्योर और नॉट, वी कैन कम टू नो बाय पुटिंग दिस जेब्रा फिश। ओके, now then pre-processing techniques of plant material to reduce the effects of anti-nutritional factors. ठीक है, हम लोग इसका भी ये एग्जांपल है, ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स विथ बेटर एमाइनो एसिड प्रोफाइल एंड लेस एंटी-न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो ये सब डिफरेंट हैं। कन्वर्टिंग लो ग्रेड लैंड एनिमल बाय प्रोडक्ट, तो इसमें कुछ बताने को ज्यादा है नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। ये देखो, ये फर्स्ट एफडीए अप्रूव्ड जेनेटिक वेराइटी है, इसको एक्वा बाउंटी साल्मोन भी बोलते हैं।
याद रहेगा नाम, दिस इज द एक्वा बॉन्टी साल्मोन और एक्वा एडवांटेज रजिस्टर्ड साल्मोन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कब हुआ है? रिसेंटली इन 2015। और इंसिडेंटली हुआ है in March of 2019 they lifted their import ban on the fish and pending finalization of labeling guidelines for bioengineered foods. Clear? So now those suppliers which are supplying such kind of fishes, they must have to follow the particular guidelines for such bioengineered foods. And salmon is now the first genetically modified fish and incidentally the first GM animal to be approved for human consumption. तो सबसे पहला जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल है, अब फिश की नहीं, फर्स्ट जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल वो आपका फिश है, और वो फिश है साल्मोन, एक्वा बॉन्टी साल्मोन। कितना इंपॉर्टेंट है, मजा आया जान के? यस सर। ओके, नाउ द ग्लो फिश, ये देखो ग्लो फिश है, ये सब सभी जो है पर्टिकुलर ट्रेट के लिए जो कलरेशन है उस ट्रेट को जानने के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग ऐसा करते हैं कि अभी अब ये सेशन खत्म होने वाला है तो हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, अब इसके बाद ज्यादा है नहीं, या फिर नेक्स्ट क्लासेस को कंटिन्यू करें, वो बताओ वेदर वी शुड कीप कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास। और अब हम लोग शॉर्ट टर्म जेनेटिक इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे थे, उसमें हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस ब्रीडिंग है, कैसे किसको आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रोमोजोम सेट मैनिपुलेशन है और सेक्स मैनिपुलेशन। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज है, यानी कि तुरंत थोड़े देर के लिए ये होता है, ठीक है, थोड़े समयों के लिए हम लोग कर सकते हैं। नाउ प्लीज टेल मी कि हम लोग आधा घंटा का ब्रेक कर ले, 1 घंटा का ब्रेक कर ले और कंटिन्यूटी के साथ इसको फिनिश कर दें, या जैसा बोलो। कंटिन्यू कर लीजिए सर। फिनिश कर दीजिए सर। ओके ओके, तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे स्टॉप करके फिर रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है, सो दैट इट विल गो टू द यूट्यूब चैनल।